ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है डिस्क्रिप्शन फॉर डेस्कटॉप। ऑब्जेक्ट में टू स्टडी द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़। डिस्क्रिप्शन फॉर डेस्कटॉप। एमएस विंडोज़ में सबसे पहले प्रकट होने वाली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहा जाता है। जिस प्रकार वास्तविक जीवन में हम अपने कार्य के नीचे डेस्कटॉप पर रखते हैं, उसी प्रकार विंडोज़ के डेस्कटॉप पर आइकन्स, टूल बार्स, फोल्डर्स इत्यादि रखे जाते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। Desktop is the first screen that appears on MS Windows X. In real life, all the utility items are placed on desktop. Similarly, a desktop environment typically consists of icons, toolbar, folders, windows, desk, accessories. It also provides drag and drop functionality and other features which make it useful. फिर उसके बाद आइकन है। आइकन अर्थात एक छोटा सा ग्राफिकल सिंबल जो कंप्यूटर पर उपलब्ध फंक्शन के उद्देश्य को दर्शाता है। एक कंप्यूटर आइकन इज ए स्मॉल पिक्टोग्राम यूज्ड एज अ टूल फॉर मेकिंग कंप्यूटर interfaces easy. Icon may represent a file, folder, application, or device on a computer operation system. It is a small graphical symbol which represents the purpose of available function on a computer. Icons are found on desktops, toolbars, and in the menus of computer application software such as Microsoft Word. Icons are very user friendly by being very different from each other. Each icon set have unifying features. Icons show these by contrasting sizes, composition, pattern, contrast, light on dark, dark on light, framed, shadowed, colored, contrast, animation. On this screen, icons are used in many ways to present files, folder, disk, drives, toolbar buttons, and menu items and taskbar items. टाइटल बार विंडोज़ की सबसे ऊपरी पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। इसमें प्रोग्राम का नाम तथा खुली हुई विंडो का नाम होता है। इसको दाहिने साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज व रिस्टोर के बटन होते हैं। टाइटल बार को विंडो को मूव करने के लिए हैंडल के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। टाइटल बार पर पॉइंटर को ले जाए, माउस बटन को होल्ड करके रखें तथा मूव करें तो विंडो भी मूव करेगी। जब विंडो वांछित स्थान पर पहुंच जाए तो बटन को रिलीज कर दें। Minimize, maximize, and restore and close button. Minimize button. The minimize button is in the upper right corner of the window. Minimizing a window does not destroy its content, but transforms the windows into a button on the taskbar. To make the button on the taskbar turn back into an on-screen window, click on it. The buttons revert to a window in the same size and location as it was before. Maximize button. A click on the maximize button makes the window occupying maximum space on a screen as possible. The shortcut key for maximize is Alt plus spacebar plus X to maximize the window. Restore button. In the right upper corner of every maximized window is the restore button. A click on this button restores the window to the size it was maximized. The shortcut key is press Alt plus spacebar then plus R. Next है close button. The close button is on the extreme right of title bar. It closes a specific window. इसके बाद है मेनू बार। मेनू बार टाइटल बार के नीचे होती है तथा इसमें विभिन्न मेनूज होती हैं जिसमें विभिन्न कार्यों की सूची होती है। सूची में से वांछित कार्य का चयन करके वे कार्य किया जा सकता है। मेनू बार इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टाइटल बार. मेनू बार कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेनूज. Groups of related action or tasks are listed under each menu. Selecting a menu displays the list of menu items. When menu item is selected, it executes an action.
उसके बाद आता है स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार सामान्यतः स्टैंडर्ड मेनू बार के नीचे होता है। इसमें विभिन्न बटन्स होते हैं। इन बटन्स की सहायता से कार्य तेज़ी से एक क्लिक द्वारा किए जा सकते हैं। तो द स्टैंडर्ड टूल बार नॉर्मली displayed under menu bar. Standard toolbar consists of a number of related buttons plunked side by side. The buttons enable you to perform frequently used tasks speedily on single click. It consists of new, open, save, print, preview, undo, redo, etc. तो उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। फॉर्मेटिंग टूल बार स्टैंडर्ड टूल बार के नीचे होता है। इसमें कमांड्स के शॉर्टकट्स के लिए बटन का यूज़ किया जाता है। तो फॉर्मेटिंग टूल बार इज प्लेस्ड अंडर द स्टैंडर्ड टूल बार। इट कंसिस्ट ऑफ बटन यूज्ड एज शॉर्टकट टू कमांड्स दैट enlarge the appearance of any document and formatting text. इसके बाद आता है द स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या है? स्क्रॉल बार विंडो के एक छोर पर होता है। स्क्रॉल बॉक्स की सहायता से पेज को ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव किया जा सकता है। स्क्रॉल बॉक्स को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वर्तमान में आप डॉक्यूमेंट के टॉप मिडल या बॉटम के निकट स्थित हैं। इस प्रकार विंडो के नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बॉक्स से पेज के दाएं बाएं मूवमेंट किया जा सकता है। The scroll bar is along the edge of the window. The vertical scroll bar travels up and down when the work is paged. By glancing at the scroll box, we can tell whether you are near the top of document, middle, or at the bottom of page. Scroll bar that run along the bottom of a window is horizontal scroll bar. It moves your view from left to right, then up and down. Shortcut key to view the top of a document, Ctrl plus Home to see the bottom, Ctrl plus N, or press the PGUP or PGDN key to respectively move one page or down at the time. इसके बाद आता है टास्क बार। टास्क बार क्या है? टास्क बार विंडोज़ के नीचे पट्टी के रूप में होता है। ये दर्शाता है कि इस समय कौन कौन सी विंडोज़ ओपन हैं और एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए टास्क बार पर वांछित विंडो के नाम पर क्लिक करना होता है। फिर आता है द क्विक लॉन्चर बार। क्विक लॉन्च बार। क्विक लॉन्च बार टास्क बार पर स्टार्ट बटन के राइट में होता है। इसमें आइकन्स पर क्लिक करके प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया जा सकता है। इसके बाद आता है द डायलॉग विंडो। द मेन टाइप्स ऑफ बटन इन द MS Windows are command button, radio button, checkbox, drop down list, tab, spinner. इसके बाद आता है कमांड बटन। कमांड बटन डायलॉग बॉक्स में होते हैं तथा प्रदत्त सूची के आधार पर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। फिर रेडियो बटन। रेडियो बटन एक स्टैंडर्ड विंडो कंट्रोल है जिसकी सहायता से यूज़र कई मैच्योर या एक्सक्लूसिव विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकता है। ये तथा टैब। डायलॉग बॉक्स में टैब एक समान प्रॉपर्टीज़ का समूह होता है। फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट वह सूची होती है जिसमें से आप कई विकल्पों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। इसके बाद है स्पिनर। स्पिनर एक ऐसा टेक्स्ट बॉक्स है जिससे आप वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं। फिर चेक बॉक्स। चेक बॉक्स एक कंट्रोल है जिसकी सहायता से यूज़र किसी ऑप्शन को एक्टिव कर सकता है। इसके बाद है शॉर्टकट्स। आप एक शॉर्टकट बनाकर उसे एक आइकन को असाइन कर सकते हैं। शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके आप सीधे वह फाइल लोड कर सकते हैं।